Good morning, dear students. Welcome back again the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. In the previous video, we have discussed about the socialism in Europe. Today, we will discuss the most important part of this chapter, the 1905 revolution, their causes, events, and what was the effects of this revolt. So let's start. Students, जैसा कि हम जानते हैं, the 1905 revolution is very important revolution in the history of Europe that affected not only Russia but many countries of the Europe. अगर हम बात करें रिवोल्ट्स के रीज़न की, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा कि ऐसी कई कंडीशंस थी जिसकी वजह से वहाँ के वर्कर्स पीजेंट्स वेयर अनसेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ जार निकोलस सेकेंड. फर्स्ट थिंग, द जार रूल was totally autocratic, means not answerable to the parliament. पार्लियामेंट का कोई रोल या कोई कंट्रोल जार पे नहीं था. ही इज एज ए सुप्रीम लीडर, सुप्रीम रूलर हु कैन मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल द सिटीजन्स. देयर इज नो रोल ऑफ पार्लियामेंट, नो रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और बॉडीज. दिस इज द फर्स्ट रीजन एंड that is the reason the peoples of Russia, whether they are liberals or revolutionaries, every person wanted to remove this system. They wanted to bring the ruler or Tsar Nicholas under the control of parliament. And so all the social democrats, socialist revolutionaries, they come together and started to demand for reduce the working hour to make the new constitution assembly. So how this revolt was started? Come. In year 1904, the situation was very bad, especially for the workers, because in this year the prices of all the important things increased with high speed and decline in wages. Means जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसकी प्राइस कंटिन्यू बढ़ रही थी और जो उनको इनकम थी, जो उनके वेजेस थे, वो कंटिन्यू कम थे, डिक्लाइन हो रहे थे. वर्किंग आवर्स वेर वेरी लॉन्ग, इसके साथ साथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स. दिस इज ऑल्सो ए मेन प्रॉब्लम belonging to the workers. In this situation, when the 4 members of workers association were dismissed at the Putilov Iron Works. In this workshop, the 4 members were dismissed. So there was a demand of strike by the workers. The 4 workers को dismiss कर दिया गया at the Putilov Iron Workshop में. Then they started ये strike, they started ये protest, and the strikes within the few days, more than 110,000 workers, more than 110,000 workers started to strike in favor of these 4 workers. इन 4 workers के फेवर में जब स्ट्राइक स्टार्ट हुआ तो अदर फैक्ट्रीज वर्कशॉप के जो वर्कर्स थे, ऑल द वर्कर्स केम टुगेदर एंड दे स्टार्टेड टू स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट. एंड देयर इन दिस प्रोटेस्ट दे वर डिमांडिंग फॉर द रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड इंक्रीज द वेजेस. जो वर्किंग आवर्स था उसको कम किया जाए और उनकी जो वेजेस थे उसको इंक्रीज किया जाए, एंड टू इंक्रीज द इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वर्कर्स. So the strike by the workers started in Russia. These strikes were led by the most important person, the Father Gapon. He was the leader of this strike that is organized by the workers of Russia. When this group, the procession of workers reached at the Winter Palace, the official palace of the authority, Winter Palace. And this procession, the number of peoples, the crowd, more than 1 lakh peoples reached at the Winter Palace. In that situations, the government called the police, and in this firing, 100 peoples were died, 100 workers were died, and 300 workers wounded. एंड दिस इज रिकॉर्डेड, मीन्स ये वो रिकॉर्ड है जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया, एक्सेप्ट किया. मीन्स 100 वर्कर्स मारे गए और
100 वर्कर्स घायल हुए by this police attack on the workers. So that is the reason this day is known as the Bloody Sunday. In the history of Russian Revolution, the Bloody Sunday is the most important event, and this is the starting of 1905 revolution. After this incident, after this killing of 100 workers, the strike started to spread in any other parts of the Russia. The countryside strikes started. The students walk out started. The students left their school and colleges. They came on the road. इससे पहले जो ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था केवल वर्कर्स के लिए था, लेकिन इस घटना के बाद द कॉमन पीपल they also came on the road and they started to protest and they joined the strike and they were demanding for the new constituent assembly, demanding their improving their conditions. Not only the students but also other middle class people, the lawyers, doctors, engineers, all the peoples came on the road and started to protest with the hoardings and banners. In these banners, there was a demand of reduce working hour, high wages, new कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह के बैनर्स के साथ जो पब्लिक थी, जो कॉमन पीपल्स थे, चाहे वो लायर्स हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एवरीवन केम ऑन द रोड एंड दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जार निकोलस, अगेंस्ट द रूलिंग एम्पायर विद द डिमांड्स ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. द कंट्री वाइड प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक स्टार्टेड विद द डिमांड्स ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. In this situation, finally, the Tsar Nicholas had to surrender, had to accept some demands of people. इस सिचुएशन में जब उसने देखा कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, the common peoples came on the road, then he agreed to created a elected representative parliamentary body. This is known as the Duma. इसका जो इफेक्ट्स हुआ रिवोल्ट्स का वो हम देखते हैं. After this, the revolt, it forced the Tsar to introduce the some changes. इस रिवोल्ट के बाद जार निकोलस ने कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट किया. वेदर ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी चेंजेस, बट ही हैड टू एक्सेप्ट. वो चाहता नहीं था कोई चेंज करना, ना ही अपने पावर में कोई परिवर्तन चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा. बिकॉज दिस प्रोटेस्ट इज नाउ ए मास मूवमेंट, नाउ ए पब्लिक मूवमेंट. व्हेन द पब्लिक केम ऑन द रोड against the government, in that situations it is not possible to government to give the order to kill all the peoples. ऐसा नहीं कि अगर आम पब्लिक सड़कों पे आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए तो गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती कि वो एक साथ सबको कह दे कि हाँ फायरिंग करके खत्म कर दिया जाए. उन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश की, जब वर्कर्स आए थे पुलिस बुलाई गई, 100 वर्कर्स मारे गए. लेकिन जब लाखों की संख्या में पब्लिक सड़कों पे आ गई और प्रोटेस्ट करने लगी तो आप कितने लोगों को मारेंगे. इन दिस सिचुएशंस फाइनली द जार एक्सेप्टेड सम चेंजेस. These changes were, first, a parliament Duma was created. The constitution was starting to written. एक constitution लिखना स्टार्ट किया गया by the constituent assembly और एक elected Duma को create किया गया. Political parties were allowed. इससे पहले जो political parties illegal थी उनको accept किया गया कि हाँ वो work कर सकती हैं, उनको allow किया गया. But this is the change only for showing. केवल दिखने का ये चेंज था, केवल शो ऑफ के लिए चेंज था. इन रियलिटी द फर्स्ट ड्यूमा दैट वाज अपॉइंटेड बाय द जार सस्पेंडेड विद इन द 75 डेज. तो फर्स्ट ड्यूमा इलेक्ट की गई, उसको उसने 75 डेज में ही क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया. आफ्टर दैट 3 months ही आल्सो क्रिएटेड द सेकेंड ड्यूमा. इट इज आल्सो सस्पेंडेड विद इन सम डेज एंड लेटर इन थर्ड ड्यूमा तक आते आते सिचुएशन ये हो गई, ऑल द मेंबर्स ऑफ ड्यूमा वी आर कंजर्वेटिव. मीन्स ऐसे लोग उस ड्यूमा में थे जो कंजर्वेटिव व्यूज को फॉलो करते थे. मीन्स दे टोटली बिलीव इन द चर्च, दे टोटली बिलीव इन द नोबिलिटी, दे टोटली बिलीव इन द एम्पायर, इन द मोनार्क. तो ये जो चेंज हुआ इससे कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन रशियन के
इतिहास में नहीं आया। बट ये हुआ कि पहली बार वहाँ पे जो मोनार्च था, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वहाँ पे एक ड्यूमा क्रिएटेड हुई और उसमें भले ही थोड़े ही मेंबर सेलेक्ट हुए और हुए। फाइनली टिल द थर्ड ड्यूमा, द ड्यूमा वाज टोटली पैक्ड अप विद द कंजर्वेटिव पीपल्स। ऐसा उसने किया क्यों? बिकॉज द जार निकोलस डिड नॉट वांट एनी कंट्रोल ऑफ एनी बॉडी ऑन हिम। अपने ऊपर वो किसी तरह का कंट्रोल नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू रिड्यूस हिज पावर, ही डिड नॉट वांट टू रिड्यूस हिज सुप्रीमेसी ऑन द कंट्री, ऑन द सिटीजन्स। वो कंट्री पे, सिटीजन्स पे जो उसकी सुप्रीमेसी थी, उसमें किसी भी प्रकार का वो रिडक्शन नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू एनी क्वेश्चन अबाउट हिज अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटी को लेकर के वो नहीं चाहता था कि किसी को भी मुझसे क्वेश्चन करने का अधिकार हो। सो ही चेंज द वोटिंग लॉज, द सिस्टम टू क्रिएट द ड्यूमा। ड्यूमा को क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम था वोटिंग लॉज का, उसने उसको चेंज कर दिया एंड मेड द न्यू सिस्टम टोटली फेवरेबल टू द जार। एंड बाय दिस he packed the Duma with the conservative members. So these were the effects of the 1905 revolution. This is known as the Bloody Sunday, and this is the most famous revolt of the world. Most famous revolt of the world. जानते हैं, अगर आप सोचते होंगे कि जब रिवोल्ट से सक्सेस नहीं मिली, हमें फाइनली जो हम चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, तो ये फेमस क्यों हुआ, इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन द कॉमन पीपल्स केम ऑन द रोड, दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। ये एक तरह से सक्सेस है कि जहां आप लोग सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, वहां पहली बार पब्लिक ने अपने राइट्स के लिए उन्होंने फाइट किया, डिमांड किया। दिस वॉज द स्टार्टिंग, दिस वॉज द बर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ रसिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट वेयर द न्यू चेंजेस केम, हाउ द न्यू रिवोल्ट वेयर स्टार्टेड। दिस इज असाइनमेंट बेस्ड ऑन टुडेज वीडियो। व्हिच कम्युनिटीज डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन? वो कौन सी कम्युनिटीज थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रही थी? हु लेड द वर्कर्स प्रोसेशन? हाउ डिड द सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विद द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज? डिस्क्राइब द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। ब्लडी संडे की जो घटना थी उसमें क्या क्या हुआ और उसका इफेक्ट क्या हुआ? इन सारे घटनाओं के बाद 1905 रिवोल्यूशन और द ब्लडी संडे का रिजल्ट रसिया पे क्या हुआ? डू ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी। इफ एनी डाउट यू कैन कॉल और मैसेज मी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।